تاریخ تھی 11 اپریل اور شہر تھا اسلام آباد کا۔ آج کا دن اہم تھا کیونکہ آج کشمالہ کی زندگی بدلنے جا رہی تھی، لیکن اپنی صبح کا آغاز کرتے ہوئے اسے اس بات کا علم نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ وہ بیڈ روم میں آئینے کے سامنے کھڑی کانوں میں ٹاپس پہن رہی تھی جب موبائل کی مخصوص ٹون بجی۔ وہ مسکرا دی۔ یقیناً ماں کا فیملی گروپ پہ میسج آیا ہوگا، وہ بھی گڈ مارننگ کا۔ ماں ایک ایسا ہی میسج اپنے تینوں بچوں کو فیملی گروپ اور پرسنل چیٹ پہ الگ الگ بھیجتی تھی۔ اس نے ٹاپس پہن کے موبائل اٹھایا اور میسج کھولا۔ ماں نے گڈ مارننگ کے ساتھ پوچھا تھا کہ کیا وہ ویکینڈ پہ ایزا کی شادی کے لیے لاہور آئے گی؟ کل بتاؤں گی ماں، اس نے مبہم سا جواب بھیج دیا۔ یہاں ریسٹورانٹ میں اتنے کام پڑے تھے، وہ کیسے جائے گی لاہور؟ وہ کل معذرت کر لے گی۔ اپنی تیاری مکمل کر کے اس نے سر سے پیر تک آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ اس نے نیوی بلو لمبی قمیض کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ کندھے پہ ڈال رکھا تھا۔ بین گلے سے گردن میں پہنا ننھا سا ڈائمنڈ لاکٹ جھلک رہا تھا۔ پیروں میں زرد ہائی ہیلز تھیں۔ لمبے بھورے بال فرینچ جوڑے میں بندھے تھے۔ بیضوی چہرہ گلابی سفید سا تھا، جیسے عموماً پٹھان لڑکیوں کا ہوتا ہے، اور آنکھیں سبز تھیں جن کے گرد لائنر لگا تھا، جیسے سیاہ پیالے میں سبز پانی ہو۔ اس نے چہرہ دائیں بائیں گھما کے دیکھا۔ سکن بے داغ تھی، کوئی ایک پمپل بھی نہ تھا۔ اس نے جوڑے سے 2 لٹیں نکالی اور انگلی سے رول کر کے چھوڑ دی۔ وہ چہرے کے دونوں طرف میں ٹھہر گئی، اپنے عکس کو دیکھ کے مسکرائی۔ وہ کام پہ جانے کے لیے تیار تھی۔ ماں ہوتی سامنے تو کہتی کہ ان کی کوئی بیٹی حسن میں ان پہ نہیں گئی، کہاں اپنے زمانے کی حسین ترین حور جہاں بیگم اور کہاں ماہبینہ اور کشمالہ۔ ایک تو ماں کی ججمنٹل آواز ہمیشہ ذہن کے پس منظر گونجتی رہتی تھی، چاہے سارا زمانہ کہے کہ ماہی اور مالا جیسا حسین کوئی نہ تھا، ماں نے نہیں ماننا تھا۔ وہ ماں کو یاد کر کے زیر لب مسکراتی ہوئی کھڑکی تک آئی۔ کھڑکی میں 3 ننھے گملے رکھے تھے، ان میں اسٹیپلیا، بیگونیا اور ہیوردیا اگے تھے۔ کشمالہ نے چہرہ ان کی سطح تک جھکا کے دیکھا۔ باقی دونوں کی نئی گروتھ نظر آ رہی تھی، مگر ہیوردیا کے پتے بھورے ہو رہے تھے۔ شاید روشنی اس کے لیے تیز تھی، اس نے پودے کو ذرا پیچھے کر دیا۔ وہ باہر جانے کے لیے لاؤنج میں آئی۔ کونے میں رکھی ورک ٹیبل سے زرد ہینڈ بیگ اور لیپ ٹاپ اٹھایا، پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ تبھی نگاہ میں کچھ کھٹکا۔ کشمالہ کے قدم زنجیر ہوئے، گردن دھیرے سے دائیں جانب موڑی۔ دیوار گیر بک شیلف میں ایک موٹی سی کتاب کی جگہ خالی تھی۔ کشمالہ کی نگاہوں نے نیچے میز تک کا سفر کیا۔ وہاں ایک ڈکشنری رکھی تھی۔ یہ شیلف سے نیچے کیسے آئی؟ اس نے چونک کے ٹیرس کے دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا۔ کھڑکیاں بھی اندر سے مقفل تھیں۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، رات کو جب میں گھر آئی تھی تب یہ کتاب اپنی جگہ پہ تھی یا نہیں، مگر کچھ یاد نہ آیا۔ اس نے سر جھٹکا۔ خیر کوئی بات نہیں، سفورہ نے کہا تھا کہ وہ نئے گارڈ کے لیے کسی کو آج بھیج رہی ہے۔ گارڈ آ جائے گا تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسے ابھی اس معاملے کی فکر نہیں کرنی تھی، اسے اپنے نئے بزنس پلان پہ فوکس کرنا تھا۔ اور اس بارے میں سوچتے ہی مالا کے لبوں پہ ایکسائٹمنٹ بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بیرونی زینے اترتے ہوئے نیچے آئی۔ وہ ماموں کے گھر کی بلائی منزل پہ بطور پیئنگ گیسٹ رہتی تھی۔ ماموں ممانی اور ان کی فیملی نیچے رہتے تھے۔ دونوں کی ملاقات ہفتوں بعد ہوا کرتی تھی۔ باہر ہوا ٹھنڈی تھی اور آسمان پہ سیاہ بادل تھے۔ آج خوب بارش برسنی تھی۔ کچن کے جالی دار دروازے سے ناشتے کی مہک پورچ تک آ رہی تھی۔ وہ دروازے پہ رکی اور جالی سے اندر جھانکا۔ نسرین کام کرتی دکھائی دے رہی تھی۔
नसरीन, कल मेरे पोर्शन में कोई आया था? नहीं बाजी, कोसर तो छुट्टी पे है 2 दिन से। उसने सफाई वाली लड़की का नाम लिया। कशमाला पोर्च की तरफ बढ़ गई। अलबत्ता उसकी सोचती नज़रों ने गेट और लान का जायज़ा ज़रूर लिया था। कौन था जो उसकी गैर मौजूदगी में उसके पोर्शन में आता था? बल्कि नहीं, उसे अभी इस बारे में नहीं सोचना था। उसे आज ज़हीर को अपने नए बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन देनी थी। उसे अपनी तवानाई बरकरार रखनी थी। ज़हीर उसका क्लास फेलो था। दोनों ने लाहौर में एक साथ ग्रेजुएट किया था। फिर ज़हीर इस्लामाबाद वापस आ गया। कशमाला के पास आइडियाज़ थे और हमेशा ही होते थे, और ज़हीर के पास सरमाया था जो कशमाला के पास नहीं था। अब्बा बचपन में ही कहीं अल्लाह को प्यारे हो गए थे। सऊदिया में जॉब करते थे। बच्चों से ताल्लुक़ ना के बराबर था। 4 सद्दा में उनकी ज़मीनें और बाग थे। अब्बा की वफ़ात के बाद भी माँ ने कभी नौकरी नहीं की, सिर्फ हिसाब किताब किए, ज़मीनों और ठेकों के रजिस्टर संभाले, लेकिन अपने तीनों बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी और आला तालीम फराहम कर दी। माँ ही आर्किटेक्ट थी, मईद डॉक्टर बन चुका था, और कशमाला को हमेशा से अपना काम करने का शौक था। लेकिन 5 साल पहले जब उसने अपना काम शुरू करने का सोचा तो उसके पास सरमाया नहीं था। उन दिनों माँ को भी माहबीना यानी माही की शादी करनी थी। गो के माही उससे छोटी थी, लेकिन उसकी अबाद से मंगनी बरसों से तय थी। अबाद उनकी सगी हाला का बेटा था। कशमाला इन हालात में माँ पे बोझ नहीं डाल सकती थी, सो उसको ज़हीर की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। यूँ 5 बरस पहले ज़हीर और उसने मिलकर एक बिज़नेस की बुनियाद रखी। ज़हीर की इन्वेस्टमेंट और माला के आइडियाज़ और मेहनत। उस वक़्त जो नामुमकिन लगता था, वो 5 बरस बाद शहर के मारूफ और एलीट रेस्टोरेंट में शामिल होने लगा था, ओशन। और ओशन रेस्टोरेंट के लिए उसने 5 बरस पहले लाहौर छोड़ दिया था। माँ इस फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया, हमेशा साथ दिया। मईद मेडिकल पढ़ रहा था और माँ के साथ होता था। फिर माही और अबाद भी उस कॉलोनी में रहते थे। यूँ माँ को उसकी ज़रूरत न थी। 1 साल पहले अबाद की कनाडा में जॉब लग गई थी। पहले वो गया और फिर 6 माह बाद माही भी कनाडा चली गई। माँ के पास सिर्फ मईद था जो सर्जरी में ट्रेनिंग कर रहा था। एक एहसास होता था कि माँ कदरे अकेली हो गई होंगी। वो सोचती भी थी कि हर दूसरे वीकेंड पे लाहौर जाया करेगी, लेकिन लाहौर जाते जाते उसे 1-1.5 माह गुजर जाया करता था। और अब वो ओशन के लिए एक नए बिजनेस प्लान पे काम करने जा रही थी। अब तो शायद वो 6 माह बाद लाहौर जा सकेगी। ये नया आइडिया उसे चंद हफ्ते कबल आया था। ओशन के पीछे कुछ जगह खाली थी जो ज़हीर की मलकियत थी। प्लान ये था कि वो दोनों मिलके वहाँ एक बेकरी बनाएं, लेकिन वो एक मुनफरिद तर्ज की बेकरी होगी, और इस दफ़ा कशमाला खुद भी इन्वेस्ट करेगी। उसने अभी ज़हीर को इस बारे में नहीं बताया था। वो एक ही दफ़ा पूरी तैयारी के साथ उसे प्रेजेंटेशन के ज़रिए बताना चाहती थी ताकि वो इनकार ना कर सके। ड्राइव करते हुए वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। दफ़ातन मोबाइल की घंटी बजने लगी। वो जानती थी इस वक्त किसकी वीडियो कॉल आ सकती थी। उसने होल्डर में लगे फ़ोन का बटन दबाया। स्क्रीन पर वीडियो कॉल रोशन हो गई। कैसी हो माही? हमेशा की तरह खूबसूरत, माही की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। माला ने स्टीयरिंग घुमाते हुए मुस्कुरा के मोबाइल की स्क्रीन को देखा। वहाँ माही नज़र आ रही थी। कनाडा में इस वक्त रात थी। माही किचन काउंटर के पीछे खड़ी जूसर के जग से जूस ग्लास में उंडेल रही थी। गोरी रंगत, गुलाबी गाल और भूरी आंखों वाली माही एक क्यूट सी पठान लड़की थी। बाल छोटे और बॉब स्टाइल में कटे थे, एक तरफ से कान के पीछे उड़से हुए और दूसरी तरफ गाल पे आगे को गिरते हुए। ये माही का सिग्नेचर हेयर कट था, जिसको वो कभी नहीं बदलती थी। तुमने ज़हीर को अपना बिजनेस प्लान दिखाना है ना आज, सोचा तुम्हें विश कर दूं। माही जग से ग्लास में जूस उंडेलते हुए कह रही थी। थैंक यू माही, और तुम ठीक हो, अपना ख्याल रखती हो ना? मुझे छोड़ो, ज़हीर का बताओ।
वो मान जाएगा ना। माही किचन स्टूल पे बैठी, कोहनियाँ काउंटर पर रखी और जूस का ग्लास कोहनियों के दरमियान रखा। फिर स्ट्रा होंठों के बीच डाल के घूंट भरा। वो बिजनेसमैन है, इतने अच्छे आइडिया को ना नहीं कहेगा। तुम ना ज़हीर पे ज़्यादा ही ट्रस्ट करती हो। स्ट्रा हटा के उसने हफ्की से कहा। आंखें शकी अंदाज में छोटी हुई। वो दिल का शेख है, मैं बता रही हूँ। वो तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करने देगा। सारा प्रॉफिट और कंट्रोल उसे खुद चाहिए। कशमाला ड्राइव करते हुए मुस्कुरा दी। क्यों इतना शक करती हो लोगों पे? तुम जो भी कहो, लेकिन माही की जजमेंट कभी गलत नहीं होती। फखर से कॉलर झटका। कशमाला मुस्कुरा दी। माही ऐसी ही थी, माँ के मुताबिक उनकी सबसे ज़्यादा समझदार औलाद, और माला के मुताबिक सबसे ज़्यादा शक करने वाली। वो खुद उसके बरक्स थी, सब पे भरोसा करने वाली, लोगों को चांस देने वाली। इसीलिए उसे उम्मीद थी ज़हीर मान जाएगा। माला, माही कहते कहते रुकी। कशमाला अपनी बहन को इतने अच्छे से जानती थी कि उसे मालूम था वो अब क्या बात करने जा रही है। फिर तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, अब मैं चलती हूँ, ओशन आ गया है। उसने किताब के अपनी जगह पे ना होने वाली बात गोल कर दी। कम से कम उस वक्त वो माही का लेक्चर नहीं सुन सकती थी। ओशन नामी रेस्टोरेंट नीले और सफ़ेद रंगों में इस्तवार किया गया था। बरामदे की मेज़ें लोगों से पुर थीं। गुफ्तगू, कहके, नाश्ता और काफ़ी की महक। अंदर का हाल भी तकरीबन भरा हुआ था, हर रोज़ की तरह। उसके आते ही इधर उधर जाते अमले ने उसे जहाँ देखा वहीं रुक के सलाम किया। बारिश आने वाली है, मज़ीद मेहमानों को लॉन में मत बिठाओ। गुजरते हुए उसने किसी को रोका। और 15-20 मिनट तक जो भी लॉन में बैठा हो उसको बहुत अदब के साथ बरामदे में मौजूद होने के लिए कह दो। फिर एक वेटर को रोका, 2 उंगलियों से करीब आने की हिदायत दी। वो मुअद्दब सा चला आया। इस कटलरी को यहाँ से उठाओ, तहक्कुम से एक मेज़ की तरफ इशारा किया, और फारूक से कहो इसको वॉश करके बफ ड्राई करके भेजे। मुझे इतनी दूर से इस पे पानी के दाग नजर आ रहे हैं। लहजा 2 टोक मगर नरम था। कह के वो रुकी नहीं, हाई हील से चलती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ऊपर आके पहले ज़हीर के ऑफिस में झांका, वो वहाँ नहीं था। वो देर से आता था और जल्दी चला जाता था। खैर है, वो इसका इंतज़ार कर लेगी। फिर वो अपने ऑफिस में आई, जहाँ साइका पानी की ठंडी बोतल और उसकी कॉफ़ी रख रही थी। थैंक्स साइका। वो मुस्कुरा के अपनी सीट की तरफ आई। उसका ऑफिस छोटा सा था। ऑफिस टेबल पे खिड़की से सीधी धूप पड़ती थी। वहाँ कैक्टस का नन्हा सा सफ़ेद गमला रखा था। हेलो शेल्डन, उसने मुस्कुरा के गमले की मिट्टी तक चेहरा झुका के उसे देखा। सीधा लंबा सा कैक्टस, जिसका नाम उसने शेल्डन रखा था। वो उसे गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में बड़ा लगा था। मैम, साइका ने जाते जाते कहा, कोई कैफ जमाल आपसे मिलने आया है, भेजूं? हाँ, उसे भेजो। वो अपनी पावर सीट पे बैठी और कमर पीछे टिकाई। एक सुकून सा वजूद में भर गया। उसका ये आरामदेह ऑफिस, खिड़की से नीचे नज़र आता रेस्टोरेंट का लॉन, फूल, पौधे, कोने में लगे घने दरख्त। ओशन उसकी वो जन्नत था जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था, और अब वो उसको मज़ीद फैलाने जा रही थी। लेकिन पहले उसे सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू करना था।